بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوامی پاکستان نیوز کی طرف سے آپ کا میزبان حسن عسکری۔ ناظرین، کچھ رپورٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے ہم جا کے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں رپورٹنگ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ جو محرکات ہیں وہ آپ کو اسی طرح بتانے پڑتے ہیں۔ اور آج کی بھی جو رپورٹ ہے وہ اسی طرح کی ہے کچھ۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں یہ جب عید کی چھٹیاں گزری ہیں تو تب ایک شخص اپنی گاڑی پہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ سڑک پہ اس طرح کی کوئی حرکت کر رہے ہوتے ہیں جو غیر اخلاقی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ بڑے غور سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اسی دوران ایک گاڑی والے نے جو ہے نا اس شخص کو دیکھا بڑے غور سے کہ یہ بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ اندھا دھند جو ہے گاڑی کو چلا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ تو وہ گاڑی والا جب اس گاڑی کو تھوڑا سا کراس کر کے آگے جاتا ہے، جو گاڑی تیز چل رہی تھی اس کو وہ تھوڑا سا کراس کر کے آگے جاتا ہے، تو پیچھے سے وہی گاڑی والا، گرے کلر کی غالباً اس کی کار تھی، وہی گاڑی والا جو ہے نا وہ اس کو پیچھے سے ہٹ کرتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ہٹ کرتا ہے، اور ہٹ کرنے کے بعد وہ گاڑی اس کے آگے لگا لیتا ہے۔ آگے لگا کے تو اس نوجوان کو وہ نیچے اتارتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو جو ہے نا وہ بلا لیتے ہیں۔ اب وہ ساتھی بھی آ جاتے ہیں، مسلح افراد ہوتے ہیں، وہ آگے بٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سر پہ اور چہرے پہ جو ہے نا وہ ضربے لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی جو فیملی ہوتی ہے ان میں سے ایک بزرگ خاتون جو ہیں وہ اترتی ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جو ہے آگے ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو زد و کوب کر رہے ہوتے ہیں وہ ان خاتون کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں، ان کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے نا بدتمیزی سے پیش آتے ہوئے دھکے دیتے ہیں۔ اب جس کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ کون ہے اور کر کون رہا ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ آپ کو اب میں بتاتا ہوں، اور یہ حقائق ہیں، یہ ایسے حقائق ہیں کہ یقین مانیں یہ پنجاب پولیس کے اوپر جو ہے نا ایک دبا ہے، اور ایسا دبا ہے کہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ پنجاب پولیس میں اقربا پروری اور قریبی عناصر کو جو ہے عہدے تقسیم کرنے کا جو ہے نا رواج بہت ہی جس کو کہہ لیں کہ زور سے جو ہے نا جاری و ساری ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس کو زد و کوب کیا جا رہا ہے وہ ایک حساس ادارے کے میجر صاحب ہیں۔ یہ ایف آئی آر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس ایف آئی آر میں ان کا نام بھی ہے، اس ایف آئی آر میں جس شخص نے یہ کام کیا ہے، اب وہ جو شخص ہے جو زد و کوب کر رہا تھا وہ بڑے اہم عہدے پہ ہے پنجاب پولیس کے، اور اس شخص کا جو نام ہے وہ نام سنتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ حیران بھی ہوں گے۔ ان جناب کا نام ہے نیاب حیدر صاحب۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھے، اور یہ حرکت انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے جو ہے سر انجام دی ہے، اور پنجاب پولیس میں ان کا جو ہوتا ہے وہ پی آر او کا ہے، یعنی کہ وہ پولیس کے ترجمان ہیں۔ آئی جی پنجاب صاحب کے جو ہے نا وہ پی آر او ہیں۔ اب آپ یہاں سے سوچیں کہ یہ واقعہ پیش آنے کی اصل میں وجہ کیا ہے۔ یہ واقعہ اصل میں پیش آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب عہدے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں یا نواز رہے ہوتے ہیں، میں تو نواز رہے کہوں گا کہ جب نوازا جاتا ہے، کیونکہ جو نیاب حیدر صاحب ہیں نا ان کو جو عہدہ نوازا گیا ہے، یہ کس بیس پہ نوازا گیا ہے یہ تو میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اتنا میں ضرور بتا دوں گا کہ اس میں کوئی اقربا پروری کا عنصر شامل ہے۔ اور نیاب حیدر صاحب جو ہیں بیسیکلی آپ کو میں یہاں پہ بات واضح کر دوں کہ جن ورڈ کے ساتھ بازی لگتا ہے نا وہ انتہائی جس کو کہہ لیں کہ معیوب قسم کے جو ہے نا وہ لفظ ہوتے ہیں، اور کام بھی لگا رہے ہیں کہ جیسے کمار بازی، یہ بھی ایک دیکھیں اب کمار بازی یعنی اس کے ساتھ بازی لگ رہا ہے نا یہ جو لفظ، اب کمار بازی ہے، اغلام بازی۔ اغلام بازی یہ قوم لوط کا شوق ہوتا تھا، یہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ جو ہے نا غلط حرکات جو ہیں یہ پیش آتی ہوتی تھیں، تو اس کو غلام بازی کہتے ہیں۔ اب اسی طرح جو ہے یہ کبوتر بازی، اب یہ جو کبوتر بازی ہے آپ یہاں سے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، ایک چیز، اور دوسرا یہ جوئے کی سیکنڈ شکل ہے۔ اگر آپ اس کو
मुशाहदाती तौर पे आप इसको देखें ज़रा, ये कबूतरबाजी को, तो इसमें जुआ लगाया जाता है, करोड़ों का लगाया जाता है। और नायाब हैदर साहब जो हैं वो कबूतरबाज हैं। अब आप खुद सोच लें कि एक कबूतरबाज की मेंटालिटी क्या होगी, और इतने बड़े ओहदे पे चले जाना और उस ओहदे पे जाके तो अपने अंदर की इस तरह की फ़रौनियत और रौनियत अपने अंदर पैदा करनी, ये जो है ना ये बड़ी ख़तरनाक बात है। क्यों कि ज़ाहिरी बात है, अगर मैं एक इतने ओहदे पे हूँ तो मैं सरेराह जाते हुए जो है कम अज़ कम ये देखूँगा कि भाई मेरा एक ओहदा मुझे ये कहता है कि मैं शराफत के साथ जो है इस तमाम की खिदमत करूँ, इस तमाम को जो है कोई तकलीफ़ ना आने दूँ। मगर यहाँ पे बरक्स काम है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको वादया करूँ थोड़ी सी, कि इस सारे मामले में जो है ना सबसे पहले गुलशन रावी जो SHO साहब हैं उनका क्या किरदार है। उन्होंने आते साथ ही अपने पेटी भाई को जो है ना बचाने की पूरी कोशिश की। हो सकता है कि नायाब हैदर साहब उनके कोई फ़ायदे के बंदे हों, कोई उनको अंदरूनी मुफादात हों, ठीक है, और वो मुफादात उनसे पूरे भी करना चाहते हों, तो उनको बुरुए कार रखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या किया, एक सुलहनामा फौरी तैयार करवा लिया। क्योंकि वो जो मेजर साहब थे वो उन्हीं के इलाके में रहते थे, तो उन्होंने एक सुलहनामा तैयार करवा लिया। और ये सुलहनामा जो है ये पर्चा कटने से पहले, ये आप FIR भी देख लें और आप इसमें जो है ना ये आप सुलहनामा भी देख लें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब सुलहनामे की जो डेट है वो पर्चा कटने से पहले की है, ठीक है। अब इस मामले को जो है ना दबाने की कोशिश की जा रही थी, और वो जो भाई थे उनको इतना ज़ख्मी किया है। अब उनकी जो है मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसमें उनकी सिर के ऊपर जो है ज़रबात आई हुई हैं काफ़ी सारी, उनका एक दांत भी टूट चुका हुआ है उसमें ना। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये तो चलो एक हसास इदारे के, यानी कि वो कोई ऑफिसर थे, ठीक है, जिनके साथ ये वाक़या पेश आ गया, उनका दायरा हरकत में आ गया, और उस दायरे ने हरकत में आते हुए FIR भी कटवाई, और नायाब हैदर साहब और उनके बेटे को भी अंदर करवाया, और बाकी 4 मुलज़िमों को भी पकड़ के अंदर करवाया। अब इनके खिलाफ जो है पहले अदालत ने 2 दिन का रिमांड दिया था, उसके बाद 3 दिन का रिमांड मज़ीद मिल गया हुआ है। और अब वही मैं कहूँगा कि पछताए क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, ठीक है। नायाब हैदर साहब, ये तो आपको उस वक्त देखना चाहिए था ना कि जब आप अपने ओहदे के नशे में जो है और उसके खुमार में जो है अपना क्या कहते हैं कि बदमस्त होके जो है आप किसी को देख ही नहीं रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, आप उनकी फैमिली का लिहाज नहीं रख रहे हैं, आप औरतों ख़वातीन का लिहाज नहीं रख रहे हैं। हालांकि हमारे माशरे में ख़वातीन की तो बहुत रिस्पेक्ट है। जिस मामले में, जिस झगड़े में, जिस बात में कभी ख़वातीन शामिल होती हैं या आती हैं तो वो तो मामला वैसे ही ख़त्म हो जाता है, मगर इन्होंने उस मामले को वहाँ पे मज़ीद तूल दे दिया। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बहरहाल और बताना भी था, लेकिन इसके जो फैक्ट्स हैं, असल में वो फैक्ट्स जो है ना वो आपके साथ जो है मैं खुल के डिस्कस करना चाह रहा था कि आप ये सोचें कि आम आदमी के साथ जो है ना वो क्या मुहरकात होते होंगे कि जब एक आम आदमी होगा, यानी मेरे जैसा कोई बंदा होगा, वो तो मार मूर खा के वो तो इस वक्त घर सुलहनामा करके तो बैठा होना था उसने। जिस तरह SHO साहब का प्रेशर था, मेरे जैसा बंदा कहाँ पे बोल सकता है। और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, और नो डाउट मुझे खदशा है इस बात का कि यकीनन कुछ अफसरान की तरफ से मुझे ट्रेस भी किया जाएगा, मुझे ढूंढा भी जाएगा, और ये मामला जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने इस पर जो है एक व्लॉग तैयार कर दिया, मगर व्लॉग मैंने जो है अपने माशरे की बेइज्जती पे रिकॉर्ड की है। मुझे इस माशरे का ये भयानक चेहरा जो है अपनी अवाम के आगे रखना, और यही मेरी सहाफ़ती जिम्मेदारी है कि जब आप ये देखें कि इस तरह के घिनौने काम एक आला ओहदे पे बैठा हुआ शख्स सर अंजाम दे रहा है, तो कोई फिर बेगैरत सहाफ़ी होगा कि जो इस तरह के जो है ना मामलात को दबाने की कोशिश करेगा, या वो फिर बुज़दिल सहाफ़ी होगा जो ये कहेगा कि भाई मैं आवाम को ना बताऊं, लेकिन मेरी सहाफ़ती जिम्मेदारियां मुझे यही कहती थी कि मैं आपको बताऊं, लिहाजा मैंने आपको बताया कि FIR करने से पहले इन्होंने सुलहनामा करवाया। मगर वो सुलहनामा ज़ाहिरी बात है कि वो जिस अदारे के थे उन्होंने फौरी तौर पे उसको मनसूख किया, और उसके बाद जो है अपनी एक FIR कटवा के, और उसके बाद जो है वो कानून को हरकत में लाते हुए जो है
उन्होंने बाप बेटे को अंदर करवाया, 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ, उसके बाद 3 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड हुआ और मजीद बंदों की जो पकड़ दकड़ है वो शुरू करनी है और वो पकड़े भी गए हैं कुछ बंदे। अब बात ये आ जाती है कि चलो बाप बेटा थे, तुम्हारा वहां पे दिल नहीं भरा, तुमने आगे से मजीद बंदे बुला लिए। और अफसोस और दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जब आप ये जुल्म कर रहे हैं, आप कम से कम ये देख लें कि उस गाड़ी में जो है कोई फैमिली बैठी हुई है, कोई लेडीज बैठी हुई है, आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपने जिस तरह की हरकत की है नियाब हैदर साहब, यहाँ तो फिर वही बात आ जाती है कि आप कबूतरबाज थे, आपने कबूतरबाजों वाली हरकतें की। अक्सर बेशतर आप देखते हैं कि कबूतरबाज किसी के घर, उनका कोई कबूतर चले जाता है तो उस घर के बाहर जो है वो गलीज गालियां और गलीज जो है हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। तो ये असल में मेंटालिटी है। शौक में इसलिए इसको थोड़ा सा पिन कर रहा हूँ शौक को, क्योंकि जो इंसान अपना जो शौक रखता है ना, उस शौक पे ही उसकी नेचर बनती है और नेचर कैन नॉट बी चेंज। जब आपकी नेचर उस चीज पे डेवलप हो चुकी होती है तो आप उसको कैसे बदलेंगे। आप ये सोचें कि उसमें अगर आप ये देखें कि गलती भी आपकी थी, एक आप गैर अखलाकी तौर पे गाड़ी चला रहे थे। दूसरी बात, अगर किसी शख्स ने आपको देखा है, आप ठंडे दिल से धीमे मिजाज से आप ये सोचते कि भाई ये मुझे क्यों देख रहा है, मैंने आया क्या गलत किया, और जो आपकी गलती थी आप उसको ऑब्जर्व करते हुए आप उसको दूर करते। मगर जनाब वो ओहदा जो था और उस ओहदे की जो खुमारी थी, जो PRO लिखा हुआ था और जो तर्जमान पंजाब पुलिस कहलाए जाने का जो नशा था, वो इनको तंग कर रहा था। और वो अकड़, वो फरोनियत, वो रोनियत जो है वो इनको जो है इस नहज पे ले आई है कि आज बाप बेटा जो है पाबंदे सलासल है। बहरहाल मैं इनके लिए दुआ गूँ कि अल्लाह ताला इनका मामला जो है बखैरियत और जिसको कह लें कि हिफ्ज़ो मान से जो है इन पे जो है अपनी रहमतें रखे। लेकिन जो कानून की सज़ा है वो तो भुगतनी पड़ेगी। और कानून हमारा क्या कहता है, जो दफात लगी उनके बारे में वो जज हज़रात बेहतर जानते हैं, वो वकला हज़रात बेहतर जानते हैं। लेकिन अफसोस था कि एक फैमिली के साथ अगर एक शख्स जा रहा है और आपको अगर उस पर कोई ऐसी फरोनियत चढ़ गई है तो आपको ये चाहिए कि आप उसको दरगुजर कर दें, उसकी फैमिली को देखते हुए, उन लेडीज़ को देखते हुए। बहरहाल अगर ये पैगाम आपको अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या इन ओहदों पे बैठी हुई ये जो लोग हैं ये क्या काली भेड़ों का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, और क्या हमारे इस महकमे में काली भेड़ें नहीं मौजूद हैं, और क्या इस तरह के लोग जो हैं वो पंजाब पुलिस के ऊपर कलंक का धब्बा नहीं है। क्या हमारे IG साहब को इस तरह के लोगों से वो ओहदे वापस ले लेने नहीं चाहिए, क्या उनको मुअत्तल नहीं कर देना चाहिए। ये तमाम बातें आप अपनी जो है कमेंट सेक्शन में आकर मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। और चैनल को ज़ाहिर बात है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हुए अपने कैमरामैन सुशील नायक के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।